والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باوت بلند جم کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله يا نبي الله يا نور الله يا خليل الله يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا ظلمت قصہ مختصر چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے
گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سربراہ حامی بے قصاں غم گسار زماں قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع محتم زین بزم کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار محبان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم بزرگوں عزیز ساتھیوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس طرح یہ آج پہلی تاریخ ہے، مبارک گھڑیاں مبارک لمحات شروع ہو چکے، ماہ ذوالحج شریف اور یہ حج کا مہینہ یقیناً یہ بہت ہی پرنور لمحات ہیں۔ تو آج کا ہمارا عنوان بھی یہی ہے، حج کی فضیلت، جس کو اللہ کریم نے مال دولت عطا کیا، پھر وہ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے پاک در پر حاضری دیتا ہے، سرکار کے روضے کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، خوش نصیبی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے کہ جس کو اللہ کے پاک در کی حاضری نصیب ہو جائے، سرکار کے روضے مبارکہ کی حاضری نصیب ہو جائے، اس پاک دردی کی زیارت نصیب ہو جائے، اس پاک سرزمین کے لیل و نہار، وہاں کی ایک ایک گھڑی قیمتی سے قیمتی ترین ہے۔ اور جب ایک حاجی حج کر کے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے تو یہ ساری چیزیں اسلام اس کو کتنی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بخاری شریف مسلم شریف کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر یہ پیارے نبی کا پیارا فرمان موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے یہ فرمان خود سنا کہ تاجدار انبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فرمایا عمرہ بھی کرے تو اللہ کے لیے، حج بھی کرے تو، یعنی یہ ہمیں ایک نصاب زندگی گزارنے کا اللہ نے عطا فرما دیا کہ تم سجدہ کرو تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہو تو وہ بھی، کسی کی خدمت کرتے ہو، کسی یتیم کا سہارا بنتے ہو، تو یہ سارے کام کس لیے کرو؟ اللہ کے لیے۔ فرمایا حج کرو، اتنا پیسہ خرچ کرو، یہ نیت نہ ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، لوگ میرا احترام کریں گے۔ فرمایا کہ پھر تم اتنی محنت کر کے اپنا ثواب ضائع کر بیٹھو گے۔ جب تم نے اتنی مشقت اتنی محنت اٹھائی ہے تو یہ نیت ہر لمحہ ہر گھڑی ہونی چاہیے کہ میں جو بھی رکن ادا کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ محبوب فرماتے ہیں، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، سارے مناسک سارے ارکان اس نے ادا کیے، ہر لمحہ اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر سمایا رہا،
जिस्म पर कपकपी तारी रही, अल्लाह से डरता रहा। तो महबूब फरमाते हैं जो बंदा हज कर लेता है अल्लाह को खुश करने के लिए, पता है अल्लाह करीम उसे कितनी शान, कितना प्रोटोकॉल अता फरमाता है। महबूब फरमाते हैं वो हाजी जिसने अल्लाह के लिए अल्लाह के घर की ज़ियारत की, हजूर के रोज़े की ज़ियारत की अल्लाह को खुश करने के लिए, तो महबूब फरमाते हैं अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देगा और वो कितना पाक हो जाएगा। फरमाया कि वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे पहले दिन का बच्चा दुनिया के अंदर आता है। जब बच्चा पहले दिन माँ के बतन से बाहर आता है तो उसके ऊपर कोई हकूक लाजिम नहीं होते, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। फरमाया कि वो सारे गुनाहों से महफूज होता है। ऐसे ही अल्लाह करीम उस हाजी को ये रुतबा, ये शान अता फरमाता है कि अल्लाह करीम उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो फिर जब हाजी हज करके घर वापस लौटे तो नीयत यही होनी चाहिए, जब मेरे रब ने मेरे ऊपर इतना बड़ा फजल फरमाया, इतना इनाम किराम से नवाजा है, तो लिहाजा अब मुझे और मुहतात होकर ज़िंदगी गुजारनी होगी। जाता है कहाँ जा रहे जी? मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ, हज के लिए जा रहा हूँ। ठीक है भाई चल। कहा भाई दाढ़ी शरीफ रख ले, सरकार की सुन्नत है, ये जेवर है, मुसलमान की शान है, ये चेहरे की ब्यूटी है, ये चेहरे का हुस्न है दाढ़ी। हर नबी, हर पैगंबर, हर रसूल, हर वली ने दाढ़ी रखी है, ये हजूर की सुन्नत है। तो कहने लगा मैं हज करके जब वापस लौटूंगा फिर दाढ़ी रखूंगा, उम्रा करके जब वापस लौटूंगा फिर दाढ़ी रखूंगा। तो अल्लाह वाले जब बोलते हैं फिर कमाल कर देते हैं। वो कहने लगे अल्लाह के बंदे वहाँ जाकर नियत करेगा तो कितना ही अच्छा है, तो पाकिस्तान से चले तो यहीं से नियत कर ले कि मैं दाढ़ी शरीफ की सुन्नत सजा के महबूब के रोज़े पर हाज़िरी दूंगा, मैं वो चेहरा लेकर अपने महबूब के सामने जाऊंगा जिस चेहरे से महबूब खुश होते हैं। वो लंबी बात है। दो बंदे आए थे हजूर के सामने, लंबी लंबी मूछें थी, दाढ़ी मुंडाई हुई थी, मेरे नबी ने चेहरा ही फेर दिया। मैं उस तरफ नहीं जा, लेकिन यही बात है कि महबूब उस बंदे से खुश होते हैं जो हजूर की सुन्नत अपने चेहरे पर सजाता है। अब क्या है प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों, जब हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करेंगे फिर अल्लाह करीम हमें कितनी बरकतों से नवाजेगा। इमामुल अंबिया के ग़ुलामों, ये मुबारक घड़ियाँ, ये मुबारक लम्हात, हम इन लम्हात को ज़ाया ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक का जिक्र करें। ये जो दिन चल रहे हैं ना, आज यकम है, इसका दिन भी बड़ा कीमती है, रात भी बड़ी कीमती है। अल्लाह की तस्बीहां, अल्लाह की पाकी बयान करो, नमाजें पहले पढ़ते हैं और पाबंदी करें, नवाफल कसरत से पढ़े, कुरान की तिलावत ज़्यादा कर दें, दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि महबूब फरमाते हैं ये जो 10 दिन है ना बड़े कीमती हैं। इन दिन हज़रत इब्ने शमामा रज़ियल्लाहु तआला रवायत फरमाते हैं कि हम हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला के पास जाते हैं, उनका आखिरी वक़्त था। ये वो हालत होती है, उस हालत के अंदर बंदा ना मुर्दों में शुमार होता है ना जिंदों में शुमार होता है, ये कंडीशन थी उनकी। वो आखिरी सांसें गिन रहे थे। हज़रत इब्ने शमामा फरमाते हैं हम उनके पास गए खबर गिरी लेने के लिए। फरमाते हैं हम उनके पास जाकर बैठे तो हज़रत अमर बिन आस का आखिरी वक़्त है। कहने लगे मैं तुम्हें दुनिया से जाते जाते हजूर का फरमान न सुना दूँ। यारो ये है असल वक़्त। लोग तो बोर हो जाने का टाइम होगा, कब स्पीकर बंद होगा तब हम जमात में शामिल होंगे, लेकिन हजूर के ग़ुलामों ये वक़्त गुजर जाएगा। वक़्त उनका भी गुजर जाएगा जो चौक चौराहे पर खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं, वक़्त उनका भी गुजर जाएगा। वक़्त उसका भी गुजर जाएगा जो अल्लाह के घर में बैठकर एक सांस ले रहा है। मस्जिद में तो एक एक सांस लेना भी सवाब है, एक एक सांस कीमती है जो अल्लाह के घर है। मोमिन जब मस्जिद में आ जाता है वो तो ऐसे खुश होता है जैसे मछली पानी में खुश होती है।
फरमाया उसे तो सुकून मिलता है मस्जिद के अंदर आकर कि मुझे मौका मिले। 8 दिन के बाद ये इज्तिमा होता है, लोग फिर भी यहाँ पर भी सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। जब 2-4 मिनट रह जाते हैं जमात में, फिर भागते भागते आते हैं। लेकिन हजूर के गुलामों, सहाबा किराम हमें क्या समझा कर गए कि दीन हमें हर मौका पर सीखना होगा और दीन की बातों को हमें अपने निसाब का हिस्सा बनाना होगा, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। आखिरी सांसें चल रही थी, हजूर की दीन की बात शुरू हो गई। हजरत अमर बिन आस कहने लगे, मैं तुम्हें जाते जाते एक बहुत प्यारा फरमान सुना कर जा रहा हूँ। बात कुछ यूँ है, मैं अभी मुसलमान नहीं हुआ था, मैं अभी मुसलमान नहीं हुआ था। जब हजूर की गुफ्तगू ने मुझे मुतासर किया, इस्लाम ने मुझे मुतासर किया, मैं दीन की तरफ आया, हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने आकर हजूर अर्ज की, हजूर मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अमर हाथ आगे बढ़ाओ, मेरे हाथ में हाथ दे दो, कलमा पढ़ लो। हजरत अमर कहते हैं मैंने हाथ आगे नहीं किया, मैंने हाथ पीछे रोके रखा। महबूब फरमाते हैं, ऐ अमर किस बात ने तुझे रोका है, क्यों हाथ आगे नहीं करता? हजरत अमर कहने लगे, महबूब एक मेरा सवाल है, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, शर्त नहीं, मैं अर्ज करना चाहता हूँ महबूब। बात कुछ यूँ है, पहले मैं मुसलमान नहीं हुआ था, अनजाने के अंदर बड़े बड़े मैंने जुर्म किए हैं महबूब, मैंने बड़े बड़े गुनाह किए हैं। मैं जब अपने गुनाहों का समंदर देखता हूँ तो मुझे नदामत होती है कि मैंने इतने इतने बड़े पाप किए हैं महबूब, पता नहीं मेरे वो गुनाह माफ़ होंगे या नहीं। महबूब फरमाते हैं, ऐ अमर मेरे हाथ में हाथ दे दे, जो इस्लाम कबूल कर लेता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। जो अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के रास्ते में हिजरत करता है अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देता है। ऐ अमर जो अल्लाह की रज़ा के लिए हज करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। तो फरमाया, ऐ इब्ने शमामा मैं तुम्हें ये हजूर का फरमान पढ़कर सुना रहा हूँ। तो यहीं पर हजरत इब्ने अब्बास हैं, उनका भी आखिरी वक्त आता है। हमारे यहाँ क्या होता है, जब आखिरी स्टेज होती है, बाप बेटे को कहता है मेरे इतने प्लाट हैं, इतना बैंक बैलेंस है, ये है फलाना जेवर फलां जगह पर पड़ा हुआ है, ये रकम फलां ट्रक में पड़ी हुई है, फलां कपड़े फलां जगह पर पड़े हुए हैं। ये हमारी सोचें हैं। कुर्बान जाए सहाबा किराम के अंदाज पर, वो ज़िंदगी की आखिरी सांसें चल रही हों फिर भी अपने नबी से वफा करते नजर आते हैं, फिर भी वो दीन पर पहरा देते नजर आते हैं, फिर भी वो ख़त्म नबूवत की बातें करते हुए दुनिया से जा रहे हैं। हज़रत इब्ने अब्बास ने बुलाया और हज़रत ज़ाज़ान, ये हजूर के बहुत प्यारे सहाबी हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत नाम हैं। हम सहाबा किराम की सीरत को पढ़ें, फिल्मों ड्रामों को देखकर अपने बच्चों के नाम ना रखें। अगर अपने बच्चे का नाम रखना है तो किसी बुजुर्ग हस्ती के नाम पर रखिए, किसी सहाबी के नाम पर रखिए। इसमें बुजुर्ग फरमाते हैं, जिसके नाम पर तुम नाम रखोगे उस बुजुर्ग का उस बच्चे को फैज़ मिलेगा। यार जिस सहाबी के नाम पर बच्चे का नाम रखा जाएगा उस सहाबी का फिर फैज़, उस सहाबी की बरकतें उस बच्चे को नसीब होंगी। महबूब के गुलामों, हजरत ज़ाज़ान रवायत फरमाते हैं हजरत इब्ने अब्बास ने कहा, मेरे बच्चों हाजिर हो जाओ। पोते हाजिर हो गए, बेटे हाजिर हो गए, अहले खाना हाजिर हो गए। अब हजरत इब्ने अब्बास आखिरी वसीयत करके जा रहे हैं। कहा, मेरे घर वालों, मैं जाते जाते तुम्हें अपने नबी का फरमान न सुना दूं, जाते जाते तुम्हें एक अच्छी वसीयत ना कर जाऊं। पोतों ने कहा, दादा जान क्यों नहीं, हुक्म फरमाइए। बेटों ने कहा, बाबा क्यों नहीं, शफकत फरमाइए, हमें कोई दीन की बात बता जाइए। मेरे भाइयों, मैं अक्सर जुम्मों के अंदर ये जुमला बोलता रहता हूँ, अगर बाप नमाजी होगा, अगर माँ नमाजी होगी तो बेटा फरमा बरदार होगा। जब हम रब के फरमा बरदार होंगे, औलाद फरमा बरदार होगी। जब हम मेहंदी की रात अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, फिर कहते हैं मौलवी साहब मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, दम करो। मैंने कहा, ओ अल्लाह के बंदे, तेरी औलाद तेरी बात कैसे माने? तूने तो मेहंदी की रात अल्लाह की मानी थी।
उस रात तुमने कहा नहीं नहीं जी, खुशी के साथ महफिल का क्या काम है, खुशी के साथ जिक्र का क्या काम है, खुशी में तो हमने फैरन करनी है, खुशी में तो हमने गाने सारी रात बजाने हैं, खुशी में हमने अल्लाह की नाफरमानी करनी है। लेकिन नाना मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं आज फिर हमें अरूज मिले, आज फिर हमें बुलंदियां मिले, तो आज हमें फिर अपने नबी से वो रिश्ता, वो अपने नबी से नाता जोड़ना होगा, फिर अल्लाह हमें इज्जत अता फरमाएगा। हुजूर के गुलामों, हज़रत इब्न अब्बास ने कहा, मेरे बच्चों बात सुनो, बात कुछ यूं है, एक बंदा, जब ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान से बंदा चला, अब जहाज़ के ज़रिए मक्का शरीफ में पहुंचा, वहाँ पर बसें हैं, कुछ बंदे ऐसे जो वहाँ जाकर पैदल चलना ज़्यादा पसंद करते हैं कि हम ज़्यादा सफ़र पैदल करेंगे तो उतनी हमें अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। तो हज़रत इब्न अब्बास कहने लगे, मेरे बच्चों बात कुछ यूँ है, जब एक हाजी अपने घर से निकलता है, हरम शरीफ में हाज़री देता है कि अल्लाह के घर की ज़ियारत करूँगा, अपने घर से पैदल चलता है, जितने कदम चलकर वो हज के लिए आता है, जितने कदम चलकर वो सफ़र तय करता हुआ हरम शरीफ में आता है, ऐ मेरे बच्चों, अल्लाह उसे हर हर कदम के बदले 700 नेकियां अता फरमाता। एडी ढिली सुभान अल्लाह, और जेड़े नहीं कहते उन्होंने कहा क्या तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कहा मेरे बच्चों 700 नेकियां मिलती हैं हर कदम पर, और फरमाया मेरे बच्चों हर जो नेकी है वो हरम शरीफ के अंदर, हरम के अंदर बैठकर जो नेकी की जाए, ये नेकी उस नेकी के बराबर है। बच्चों ने फिर सवाल किया, बाबा बताइए, ये जो बाहर नेकी की जा रही है, एक कदम पर 700 नेकियां हैं और हरम की नेकी के बराबर है, बाबा बताइए जो हरम के अंदर बैठकर नेकी की जाएगी उस नेकी का कितना सवाब है? फरमाया बच्चों जो हरम के अंदर बैठकर तुम एक नेकी करोगे, अल्लाह 1 लाख नेकियों का सवाब अता फरमाएगा। शुक्र है बोले हो, शुक्र है बोले हो, ये बोलने की आदत बनानी चाहिए, अल्लाह का जिक्र ऊंची आवाज से करना चाहिए। कहा बेटो अल्लाह करीम तुम्हें, मैं बात को शार्ट कर रहा हूं, कहा बेटा जब तुम जितने कदम चलकर हरम शरीफ में दाखिल होंगे, अल्लाह तुम्हें 1 कदम के बदले 7 करोड़ नेकियां अता फरमाएगा। मेरी दुआ है जिन्हें सुभान अल्लाह आखी अल्लाह उन्हें बुला ले, जिन्हें नहीं आखी ओदी मर्जी है। हाय हाय 7 करोड़ नेकियां एक कदम के बदले। अल्लाह अकबर। हज़रत फुज़ैल बिन इयाद फरमाते हैं, लोगों आज हमारा उम्रे का अंदाज भी बदल गया, आज हमारा हज करने का अंदाज भी बदल गया। हज़रत फुज़ैल बिन इयाद फरमाते हैं, मैंने एक बंदे को देखा जो हर 2 कदम पर 2 नफल पढ़ रहा है, हर 2 कदम पर 2। हमारे हर 2 कदम पर एक सेल्फी होती है, सच्ची बात है, हर 2 कदम पर सेल्फी। हरम शरीफ को कंड की जा रही है, खाने काबे को कंड करके खड़ा सेल्फी ले रहा। ये सोचने की बात है, हम किस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया कि भाई तू हर कदम पर 2 नफल क्यों पढ़ता है? सुनिए उस दीवाने का जवाब। कहने लगा, हज़रत बात कुछ यूँ है, मैं अपने वजूद की तरफ देख रहा हूँ और इस पाक धरती की तरफ देख रहा हूँ कि मेरे रब ने कितना फजल फरमाया। मैं इतना गुनाहगार हूँ फिर भी मेरे रब ने अपने घर पे बुला लिया। मैं तो उस मालिक का शुक्र अदा कर रहा हूँ। तो आजकल एक जुमला बोला जाता है, कारी साहब महंगाई इन्नी हो गई है, हूँ तो हज सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते हैं, गरीब के बस की गल नहीं। ये जुमला गलत है, बात नसीब की है। जिसके नसीब में हज है अल्लाह उसे आज भी बुला रहा है। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने हमें और बड़े मौके अता फरमाए हैं। मिसाल के तौर पर मेरे महबूब फरमाते हैं, बड़ी तवज्जो तलब आखिर में बातें हैं मैं करूँगा, गरीबों का हज क्या है? गरीबों का भी हज रखा है। अल्लाह की रहमत बड़ी सस्ती है, हर चीज़ महंगी हो गई है। आज तो हालात ऐसे हैं, बदबख्त हुक्मरान, हालात और कंडीशन ऐसी है, बंदा रात को सोता है हालात कुछ और होते हैं, सुबह जब बेचारा उठता है तो कुछ ना कुछ बदला ही होता है। मेरे भाइयों हमें अल्लाह के दरबार में सच्ची तौबा करनी होगी। मैं एक जुमला देना चाहता हूँ, किसी को कोड़ा लगता है लगे, ये सूदी निज़ाम से महंगाई कभी कम नहीं होगी। ये सुन लीजिए, सच्ची बात है। जब तक ये सूदी निज़ाम चलेगा, वो अंग्रेज हमें सूद पर कर्जे दे रहा है।
हमारे बाबा जी पहले बयान दे गए थे, हालांकि वो मीडिया पर चला भी था कि काफिरों का इलाज क्या है, कैसे इनसे कर्जा लेना है, फिर कर्जा कैसे वापस करना। भाई हमने जितने लिए हैं उतने ही देंगे, क्योंकि हमारा दीन हमें सूद की इजाज़त नहीं देता। जो कौम सूद खाती है, महबूब फरमाते हैं, वो अल्लाह से जंग करती है। जब तक ये सूदी निज़ाम चलेगा ये महंगाई कभी कम नहीं हो। हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, जहाँ इस्लाम है। अंग्रेज़ों ने कहा तुम दाढ़ी पगड़ी वाले कुछ नहीं कर सकते, हमसे कर्जे ले लो। मैंने इशारा दे दिया, समझ जाना। दाढ़ी वालों से कहा अंग्रेज़ों ने, हमसे कर्जे ले लो, इतना सूद। उन्होंने कहा हम भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे, लेकिन अपने रब से कभी जंग नहीं करेंगे। आज देखिए उस मुल्क को अल्लाह ने कितनी तरक्की अता फरमाई। वहाँ पर 85-86 रेट है, हमारे तो कहाँ से कहाँ डॉलर की वो उड़ान बढ़ती जा रही है। हमें हर मामले में रहनुमाई फरमाता है। महबूब फरमाते हैं, यारो तुम फजर की नमाज अदा करो, नमाज पढ़ के बैठ जाओ मस्जिद में। ये नहीं कि नमाज पढ़ो भाग जाओ, अखबार पढ़ी या चाय का कप है वक्त गुजर, नहीं। फरमाया फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद में बैठे रहो और इशराक का इंतज़ार करो। फरमाया 2 नफल नमाज इशराक के तुम अदा करो, अल्लाह तुम्हें हज उम्रे का सवाब अता फरमाए। ये है गरीबों का हज। और दूसरी हदीस है, फरमाया तुम इशराक के 2 नफल पढ़ो, चाश्त के 2 नफल पढ़ो, अल्लाह तुम्हें 2 हज 2 उम्रों का सवाब अता फरमाए। और यारों इससे भी सौखी बात कर देता हूँ, महबूब के गुलामों सुनो। फरमाया जब बंदा वुजू करे, वुजू करके नियत कर ले मैंने एहराम बांध लिया है, एहराम बांध लिया है, मस्जिद में आ जाए, नफल पढ़े, अल्लाह उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। बाद जमात नमाज पढ़े, अल्लाह उसे हज का सवाब अता फरमाएगा। और आखिर में बहुत बड़ी बात देने लगा हूँ, हर बंदे की सोच उलट होती है, हर एक बंदे की सोच एक जैसी नहीं हो सकती। कुछ लोग कहेंगे पता नहीं ये कारी साहब ने बात अपने लिए कह दी, मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, ऐसी कोई नीयत नहीं। लेकिन बताना चाहता हूँ, हमारे मुआशरे के अंदर एक बच्चा कुरान हिफज करता है, लोग कहते हैं ये कहाँ से खाएगा, ये सुनने को मिलता है, कहाँ से खाएगा। वो जी कारी साहब तुसी इन्ने पढ़े लिखे हो तो यही काम कर दे हो। मैं तो अपने बच्चे ने इस लाइन से नहीं लाना, मैं क्या इस लाइन से वही आवेगा जिसे नसीब चंगे। वो ये लाइन तो नसीब वालों को मिलती है। मेरे महबूब ने फरमाया मैं उनको अपना मुसल्ला देकर जा रहा हूँ। उलमा नबियों के हज़रत अब्दुल्ला का फरमान सुनिए, और बहकी शरीफ के अंदर पूरी तकरीर का निचोड़ है। ये दिल की आवाज़ पहुँचाने लगा हूँ। हमारे बच्चे कुरान हिफज कर रहे हैं, ये उनकी दिल जोई के लिए जो दरसे निज़ामी पढ़ रहे हैं, उनकी दिल जोई के लिए ये फरमान सुनाने लगा हूँ कि तुम्हें रोज़ी कौन देगा, तुम्हें रोटी कौन देगा। हज़रत अब्दुल्ला ने अर्ज़ की आका मुझे कोई वजीफ़ा ऐसा बता दीजिए, टाइम भी थोड़ा लगे नेकियां भी ज़्यादा लगन। ये किसने पूछा? हज़रत अब्दुल्ला ने इब्न मसूद। ये आका से सवाल पूछा, किसी डाइजेस्ट की बात नहीं है, कोई किस्सा कहानी नहीं है, कोई अखबार की खबर नहीं है, बहकी शरीफ की बात है। हजूर की बारगाह में सवाल हो रहा है, आका कोई ऐसा वजीफा बताइए टाइम थोड़ा लगे सवाब ज्यादा मिले। महबूब ने फरमाया ए अब्दुल्ला मैं क़यामत तक तुम्हें वजीफा बता रहा हूँ, उलमा की सोहबत में बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हें बरकतें अता फरमाएगा। हजे भी थोड़े बोले हो। अगली गल इस तो भी वजनी गल, आका जड़ा उलमा दे कोल बैठेगा इत्थे तो सलाम बाद फिरदा, पहलों दौड़ा लगियां, एक उधरों उठदा, एक उधरों उठदा, एक पिछे उठदा, बतवा टाइम देखीदा काफ़ी तादाद घट जाती है। हाँ जी, लेकिन सुनो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद का फरमान, आका मैं अगर आलिम दीन के पास जाकर बैठूंगा मुझे क्या मिलेगा? सुनिए दिल थाम कर, अगर बात अच्छी लगे तो दाद जरूर देनी है। हज़रत अब्दुल्ला कहने लगे आका बताइए, अगर मैं आलिम दीन की खिदमत करूं, नजराना पेश करूं, आलिम दीन के पीछे नमाज पढ़ूं,
मुसाफा करूं, सीने लगूं, इधर तो लोग सलाम ही नहीं लेते, दूर भाग जाते हैं। ये महबूब की हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बयान कर रहे हैं, आका मैं अगर आलम दीन की सोहबत इख्तियार करूं, कोई नजराना पेश करूं, मुझे क्या मिलेगा? महबूब फरमाते हैं, अब्दुल्ला जो आलम दीन की खिदमत करेगा अल्लाह उसे 70 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर, कितने हज्जों का सवाब? ओए 8 लाख लाख एक भी पता नहीं कबूल है कि नहीं। ये मौका है, 70 हज्जों का सवाब मिलेगा। फरमाया जो अपने आलम दीन की खिदमत करेगा। मैंने पहले कह दिया नीयत अपनी अपनी है। ये मैंने इस नीयत से बात बताई हमारे बच्चों का हौसला बढ़ेगा कि दुनिया अगर मुआशरा उन्हें इज्जत देता ना दे, दीन उसे इज्जत दे रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम की पाक बारगाह में इल्तिजा है, अल्लाह हमें अपने पाक दर की बार बार बादब हाज़िरियां नसीब फरमाए, आमीन। आखिर में